Welcome, guys, in this new video. And this is the continuation of the cardiovascular system, which we have discussed in a previous lecture about cardiac cycle. और इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे हार्ट का इंट्रिंसिक कंडक्शन, राइट? सो हार्ट में भी एक्चुअली काफी सारे ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हार्ट में कंडक्ट कराते हैं इम्पल्स को, और जिसके थ्रू जो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, and then it results to the a pump of the blood throughout our body. So let's talk about the intrinsic conduction of the heart, right? So if we write about intrinsic conduction of heart. So what does it mean? Actually, the conduction of heart consists of two types, intrinsic and extrinsic. In this video, we are going to talk about the intrinsic conduction of the heart, right? So let's see. Here's a picture of heart. So actually, heart has a unique property of automaticity or orthomaticity, right? Both can be named. So, automaticity and orthomaticity is nothing but the intrinsic ability of a heart. Uh, एक इंट्रिंसिक एबिलिटी है स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन की, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की थ्रू आउट द हार्ट, एंड विच रिजल्ट्स इनटू द कॉन्ट्रैक्शन, जो लीड करता है कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज अगेन, हार्ट की एक अपने अंदर की कैपेबिलिटी है, एक इंट्रिंसिक एबिलिटी है कि वो जनरेट करे एक्शन पोटेंशियल उसके हर सेल में, और कॉन्ट्रैक्ट करे कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स को, हार्ट की मसल को, ताकि जो ब्लड है वो पंप हो सके, ताकि कार्डियक साइकिल रन हो सके, राइट? So now discuss about the cells which are found in the heart. Actually, basically, there are two kinds of cells which are found in our heart. So basically, there are two kind of cells, right? One is nodal cell and another is contractile cell. Now, look here. These are the two kind of the cells, right? Two kind of the cells. One is contractile and another is nodal, right? One is nodal, यहाँ मैंने नोडल ड्रॉ किया है, और यहाँ मैंने कॉन्ट्रेक्टाइल ड्रॉ किया है. So you can see the difference. Nodal cell is nothing but the impulse generating cells, right? So nodal cell आपके वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे हार्ट में. So actually heart runs on the electricity. हार्ट को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए यार, इम्पल्स चाहिए. तो वो जो इम्पल्स जनरेट करने का काम है ना, वो नोडल सेल्स का है. और जो आपका कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेंगे, जो एक टाइप के मसल सेल्स है, कॉन्ट्रेक्टाइल मसल सेल्स. तो दीज आर, सॉरी, so these are the contractile cells. These are your contractile cell which generate the contraction, right? ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इनमें मसल सेल्स की प्रॉपर्टी होगी, लाइक दिस इज दीज आर योर मसल सेल्स, एंड दीज आर योर नोडल सेल्स विच जनरेट द इम्पल्स. सो ये नोडल सेल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, राइट? सो हियर आई एम गोना राइट अबाउट द नोडल सेल, what kind of nodal cells we have. So basically we have uh, ऐसे नोड, राइट? हम बात करेंगे इसकी, ये क्या है अभी. एवी नोड, एवी नोड, एवी बंडल, और अपन इसे एक और नाम से बुलाते हैं, बंडल ऑफ हिस. आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस नेम, बंडल ऑफ हिस. एंड लास्टली Purkinje fibers, or Purkinje
fibers. So these are the cells which comes into the nodal cells, right? Now let's talk about the contractile cells. Contractile cells में कौन कौन आता है, कैसे क्या क्या आता है, right? Actin, your myosin. ओके, हम इससे फेमिलियर होंगे ही होंगे, 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, एक्टिन मायोसिन बैंड्स, थिक बैंड्स और थिक बैंड्स which helps to contract the muscle fibers, right? And there are also some protein like troponin, like troponin and tropomyosin, and the most important, obviously, sarcoplasmic, your sarcoplasmic reticulum, right? Sarcoplasmic reticulum. So, your nodal cell consists of SA node, AV node, AV bundle of his Purkinje fiber, uh, right? And here we have actin, myosin, troponin, tropomyosin, sarcoplasmic reticulum. So, we will discuss it later कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं. अब अभी के लिए सिर्फ इतना हम जान लें कि नोडल सेल का काम है इम्पल्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसको स्प्रेड करना थ्रू आउट योर हार्ट. एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स का काम है एक यूनिट की तरह पूरा वर्क करके कॉन्ट्रैक्ट करना मसल फाइबर्स को, राइट? सो दिस इज अबाउट द सेल्स ऑफ द हार्ट, राइट नाउ. अब अपन इंट्रिंसिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं यार, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो सेल्स हैं, नोडल सेल्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे कैसे जो इम्पल्स है, जो इम्पल्स जनरेट हुआ है हार्ट में, वो कैसे कैसे स्प्रेड होगा थ्रू आउट द हार्ट, right? So here is your SA node, right? Here is your SA node. This is the most important node. Why this is important? This is because it generates the impulse, right? It generates the 60 to 80 beats per minute, right? 60 to 80 beats per minute ये impulse generate करता है, right? So this is your pacemaker, right? ऐसे नोड ही वो जगह है जहां से इंपल्स जनरेट होगी हार्ट की. एंड जैसे ये 60 टू 80 बीट्स पर मिनट इंपल्स जनरेट करेगा, नाउ वी हैव टू pathways, right? In this right, this is your right atrium, this is your left atrium, this is your right ventricle, and this is your left ventricle. So जब ये this is situated in the just below the superior vena cava. This is your superior vena cava. Just below the superior vena cava in the right atrium. So ये impulse generate करेगा. And what are these? These are these are internodal pathways. Internodal pathways. Now, why I'm calling these internodal pathways? Because ये भी एक node है, ये भी एक node है. We will discuss about it. This is AV node. This is your AV node. So इस नोड और इस नोड के बीच में ये पाथवेज है जो कि आपके एट्रिया को इम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. सो एवी नोड और ऐसे नोड के बीच में पाथवेज है, तो ये इंटरनोडल पाथवेज है. नाउ दिस इज योर इंटर एट्रियल सेप्टम. ये दो एट्रिया के बीच का सेप्टम है, और इस सेप्टम को क्रॉस करके यहाँ पे कुछ बंडल्स गए जिन्हें हम बॉकमैन्स बंडल कहते हैं, राइट? इन्हें हम बॉकमैन्स बंडल कहते हैं. ये जो बंडल है ये आपके लेफ्ट एट्रिया को सप्लाई करेगा, एंड इवेंचुअली दिस विल आल्सो कम इनटू योर एवी नोड, राइट? सो इन्हें सबको कन्वर्ज होके लास्ट में एवी नोड पे ही आना है. नाउ एवी नोड will further continue into bundle of His. This is your bundle of His, right? This is your bundle of His. Now, bundle of His will divide. यहां से देखो ये bundle of His divide हो रहा है. bundle of His divide हो रहा है.
ये इसे मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इसे मैं नाम दे सकता हूँ, इसे मैं नाम दे सकता हूँ राइट बंडल ब्रांच, एंड इसे नाम दे सकता हूँ लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट. So right bundle branch will supply to the right side of the ventricle, and left bundle branch will supply to the left side, uh, left ventricle, right? So right bundle branch we can see, चाहे ये राइट बंडल ब्रांच हो चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच हो, ये छोटे छोटे फाइबर्स और निकाल रही है, जिन्हें हम कहते हैं पर्किंजे फाइबर्स. दीज आर योर पर्किंजे फाइबर्स. पर्किंजे आर योर पर्किंजे फाइबर्स, राइट. तो ये पर्किंजे फाइबर्स है. चाहे वो बंडल ब्रांचेस हो चाहे वो पर्किंजे फाइबर्स हो, ये भी इम्पल्स जनरेट करते हैं, बट ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं. लेट्स से पर्किंजे फाइबर विल जनरेट 10 to 15 beats per minute. So, what I'm saying is your primary source of impulse generating cell is your SA node. SA node ही आपका वो प्राइमरी सोर्स है इम्पल्स जनरेशन का. ये लोग भी करते हैं बट ये इतनी ज्यादा इम्पल्स जनरेट नहीं करते. सो इन जस्ट इन केस कि आपका ऐसे नोड वर्क नहीं कर रहा है, देन यू आर गोइंग टू नीड आर्टिफिशियल पेस मेकर, राइट. नाउ AV node is AV node हैज अ डिफरेंट फंक्शन. AV node जो पेस मेकर है वो ऐसे नोड है, पर जो पेस सेटर है, अब इसकी जो पेस है सेट करनी है, रेगुलेट करनी है. ऐसा नहीं कि आपने तुरंत इम्पल्स ली और आप तुरंत भेज दोगे. उसे कब भेजना है, कितना डिले करना है, इस सब का ध्यान कौन रखता है, वो रखता है AV नोड, राइट. हियर इज अ डिले, हियर इज अ डिले ऑफ 0.1 सेकेंड. सो योर AV नोड, आपका जो AV नोड है वो 0.1 सेकेंड का डिले देता है, इम्पल्स को होल्ड करके रखता है जब तक कि आपके वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो जाते हैं, राइट. जस्ट आपके वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है. नहीं तो अगर ये पहले ही इम्पल्स भेज देगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे उसी सेकंड, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा. सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी अ मैस. सो एक 0.1 सेकेंड का डिले देगा, 0.1 सेकेंड का डिले देगा ये AV नोड, राइट. AV नोड 0.1 सेकेंड का डिले देगा. और इस 0.1 सेकेंड के डिले देने के दो कारण है इस AV नोड के पास. पहली बात तो ये कि इट हैज फ्यूअर, इट हैज लेस गैप जंक्शंस. इसके पास गैप जंक्शंस की कमी है, राइट. और गैप जंक्शंस कैसे इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं सेल टू सेल, वी आर गोना डिस्कस अबाउट इट लेटर, राइट. हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है गैप जंक्शंस हेल्प करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में. सेकंड जो रीजन है वो ये है कि स्मॉलर द डायामीटर लेसर द कंडक्शन. सो यहाँ पे इसका जो डायामीटर है वो कम है, right? This is less thicker than your SA node, right? तो ऐसे नोड के कंपैरिजन में AV नोड थोड़ा पतला है और इस कारण इसका कंडक्शन कम है. द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई ऑन योर डेली लाइफ इलेक्ट्रिकल वायर्स. अगर आपके पास मोटा वायर है देन दिस इज गोइंग टू बी मोर कंडक्टिव. तो आयंस का फ्लो बढ़ जाता है डायमीटर ज्यादा होने से. सो इट इज इजीली अंडरस्टेबल कि अगर आपका डायमीटर कम है तो कंडक्शन कम होगा, राइट. नाउ नाउ दिस इज अबाउट द कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द हार्ट. कि आपने सबसे पहले देखा ऐसे नोड, फिर इंटरनोडल पाथवेज, बॉकमैन्स बंडल, फिर कन्वर्ज होके आ रहा है AV नोड में. AV नोड एक डिले भी दे रहा है, रेगुलेट भी कर रहा है इम्पल्स को. पेस सेटर है, पेस को सेट कर रहा है. पेस को मेक किसने किया, पेस को बनाया किसने, ऐसे नोड में था. उसके बाद ये फर्दर कंटिन्यू हो रहा है हमारे बंडल ऑफ हिस में. फिर वो राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, देन इवेंचुअली पर्किंजे फाइबर्स. और ये सभी थोड़ी बहुत इम्पल्स भी जनरेट कर रहे हैं पर नॉट दैट सिग्निफिकेंट जितनी की जरूरी हमें ऐसे नोट दे रहा है. सो दिस इज अबाउट बेसिक basic elements, basic conducting elements of heart. Now let's talk about the cells. So actually we have already discussed that we have two kind of cells.
we have two kind of cells, right? Your nodal cells and your contractile cells. नाउ सी, देखो, नोडल सेल्स है, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स, देखो ये इस तरीके से आपस में कहीं ना कहीं जिसे कहना चाहिए ये जुड़े होंगे। ये देखो गैप जंक्शन के थ्रू आयन का फ्लो होता रहेगा इसी तरीके से यहाँ से सेल टू सेल। मान लो ये दो नोडल सेल है, फिर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल है। ये ऐसे ऐसे पूरे बंडल में होते हैं, ये गैप जंक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं, इनसे आयन्स फ्लो होते रहते हैं, है ना। और इम्पल्स पहुंचती रहती है और ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, राइट। तो अब मैं सेपरेटली एक ऐसा नोडल सेल लूंगा, राइट, एक ऐसा नोडल सेल लूंगा और दूसरी तरफ मैं कॉन्ट्रेक्टाइल सेल लूंगा। इन दोनों को गैप जंक्शन के थ्रू जोड़ूंगा, गैप जंक्शन की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस बताऊंगा और साथ ही साथ डिस्कस करूंगा कि कैसा अंदर आयन का फ्लो हो रहा है। और उसी के साथ ग्राफ, हम अलग अलग दो ग्राफ्स की बात करेंगे, नोडल सेल के ग्राफ की अलग बात करेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल के ग्राफ की बात अलग करेंगे। और हम जानेंगे कि जैसे जैसे आयन का इनटेक या आउटफ्लो हो रहा है जिस सेल में, तो ग्राफ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन किस तरीके से हो रहा है, वो सब कुछ अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो गेट रेडी, राइट, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द एवरी सेल। अब जरा इस डायग्राम को देखो यार, यहाँ पे मैं तुम्हें दो सेल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें दो सेल्स दिखा रहा हूँ, नोडल सेल्स भी दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि तुम्हारा किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स, राइट। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे हैं साथ साथ में, बट प्लीज एडजस्ट। तो अगर तुम इस डायग्राम में देखो तो तुम्हें पता पड़ेगा कि इस डायग्राम में दो सेल्स दिख रहे हैं तुम्हें। यहाँ पर देखो, ये है हमारे नोडल सेल, यहाँ से ही हमारा इम्पल्स जनरेट होगा। और ये है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल सेल, ठीक है। ये हमारा नोडल सेल है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल, राइट। नाउ कहानी कहाँ से शुरू होती है? सो स्टोरी विल बिगेन नाउ, जब ये सोडियम चैनल, ये जो है ना, ये तुम्हारे सोडियम चैनल है, और ये धीरे धीरे यहां से सोडियम जो है अंदर आ रहा है, धीरे धीरे सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, राइट। यहां से धीरे धीरे सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं। सो नाउ सी, नोडल सेल का यूजली जो रेस्ट जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, RMP से मैं से डिनोट करने वाला हूँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज अबाउट -60 मिलीवोल्ट्स, राइट, -60 MV, -60 मिलीवोल्ट्स जो है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यूजुअली। और जैसे जैसे ये सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे ये चैनल सबसे पहले सोडियम चैनल से ओपन हुआ स्लोली, और जैसे जैसे ये अंदर आए धीरे धीरे जो है पॉजिटिविटी अंदर बढ़ी, एंड -60 से इट विल बिकम नाउ -55 वोल्ट, -55 वोल्ट, सी दिस, थोड़ा सा ये जो है ये ऊपर उठ गया, राइट। और -55 मिलीवोल्ट्स पे ये आ गया, राइट, बिकॉज ऑफ दीज सोडियम चैनल, राइट। नाउ ये जैसे ही -55 पे आया, uh, इसने ट्रिगर किया यहां पर हमारे सबसे पहले टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को, राइट। टी टाइप, ये है टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, और यहां से धीरे धीरे कैल्शियम आने लगे अंदर। यहां से ये कैल्शियम आयंस, ये जो है ये कैल्शियम आयन है, धीरे धीरे कैल्शियम आयन अंदर आया, जिसकी वजह से ये देखो ये और शूट, यहाँ पे अब पॉजिटिविटी और बढ़ गई, यहाँ पर पॉजिटिविटी और बढ़ गई, राइट। सो नाउ दिस विल बिकम योर, दिस इज बिकम व्हाट, दिस इज बिकम योर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आ गया है, और ये कितना होता है, दिस इज अराउंड -40 मिलीवोल्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ योर कैल्शियम आयंस, वो भी टी टाइप कैल्शियम चैनल्स ऑन हुए, और ये अब हो गया -40 मिलीवोल्ट, राइट। सो जैसे ही -40 मिलीवोल्ट पहुंचा, ठीक उसी टाइम पे
ट्रिगर हुए आपके एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, राइट? दिस इज योर एल टाइप कैल्शियम चैनल्स. Now these L type calcium channels become activated, and these are going to pump in more and more calcium ions. Sudden intake of calcium ions, और बहुत ज्यादा कैल्शियम आयंस यहाँ पे हो गए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव. एंड नाउ हियर यू कैन सी अ सडन शूट, राइट? यहाँ पे एकदम सडन शूट हुआ, पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ गई अंदर. And this is now become what? This is now become positive, right? This is now become positive 40 millivolt, positive 40 millivolts, right? जैसे ये पॉजिटिव 40 मिलीवोल्ट्स हो गया, जैसे ही पॉजिटिव 40 मिलीवोल्ट्स हो गया, यहां पर अब वक्त है इन आयंस को भेजने का, इन कैल्शियम आयंस को, इन पॉजिटिव कैटायंस को भेजने का हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल सेल में, राइट? एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं. सबसे पहले आपके सोडियम आयंस धीरे धीरे अंदर आना शुरू हुए थे, ये ग्रीन एरिया जो देख रहे हो थोड़ा सा -60 से -55 हुआ. उसके बाद ये -55 से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आया. Your threshold threshold potential, right, which is your -40 millivolts. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -40 मिलीवोल्ट्स, एंड देन सडन शूट हुआ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बाद, और खूब सारे कैल्शियम आयंस, पॉजिटिव आयंस अंदर आए, और +40 मिलीवोल्ट्स तक ये पहुंच गया, राइट? मैं अभी इसके आगे की बात नहीं करने वाला हूं, मैं बस अभी इतना बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो फेज है ये आपका रीपोलराइजेशन का फेज है. ये अगेन इसमें क्या होगा ये अपन बाद में देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिविटी कम होगी, वो अपन साइकिल के एंड में देखेंगे. अभी देख रहे हैं कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए, सडन शूट हुआ. Now these calcium ion and cations will transfer into the second your second cell, which is contractile cell. Now here we talk about the gap junction, right? देखो यहाँ पर ये है, इन्हें हम कहते हैं गैप जंक्शंस. इन्हें हम कहते हैं, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हें हम कहते हैं, इसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इन्हें हम कहते हैं हम गैप जंक्शंस, राइट? ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स है जिन्हें हम कहते हैं कोनेक्टिन्स, राइट? इन्हें हम कहते हैं कोनेक्टिन्स. ये जो कोनेक्टिन प्रोटीन्स है, ये एक चैनल्स है जो देखो आपस में सेपरेट है, ये जुड़े हुए नहीं है, ये गैप जंक्शन है, गैप है इनमें. और ये जो है ये अलाउ कर रहे हैं आपके आयन के फ्लो को, राइट? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आयन के फ्लो को. नाउ हमें इन जो सेल्स है इन्हें आपस में कनेक्टेड रखना है, जोड़ा हुआ रखना है. ऐसा नहीं यहाँ पे गैप है तो ये सेल्स तो अलग अलग हो जाएंगे, हमें इन्हें टाइटली जोड़े रखना है. तो यहाँ पर नाउ who comes in the role? Desmosomes. These are your desmosomes, जो आपके दोनों सेल्स को कस के पकड़ के रखते हैं यहाँ पर, डेस्मोसोम्स. और उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, राइट? ये जो प्रोटीन है, ये जो आपको डब्बे जैसा प्रोटीन दिख रहा है, ये कहलाता है आपका डेस्मोप्लेकिन. डेस्मोप्लेकिन, राइट? ये आपका कहलाता है डेस्मोप्लेकिन. और ये जो इसके बाल जैसे दिख रहे हैं आपको, ये कहलाता है सिंपली केराटिन प्रोटीन. दिस इज योर केराटिन प्रोटीन, राइट? तो ये जो होते हैं ये जंक्शंस अच्छे से पकड़ के रखते हैं. नाउ हियर्स अ कॉन्सेप्ट, लुक, लेट मी क्लियर दिस ऑल ड्राइंग्स जो कि काफी मैसअप दिख रही है. हाँ यार, थोड़ा मेरे साथ राइटिंग का इशू है, बट एडजस्ट. सो अगर मैं ये सारी ड्राइंग हटा दूं और एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे लिख के बताऊं कि देखो यार, जब तक ये सिर्फ कोनेक्टिन थे, जब तक ये सिर्फ कोनेक्टिन थे, ये जो कनेक्टिन थे, ये गैप जंक्शन बना रहे थे, ये सिर्फ एक गैप जंक्शन है. लेकिन हमें जरूरत है इन सेल्स को आपस में अच्छी तरह चिपका के रखने की, और यहाँ पे तो गैप जंक्शंस में गैप है, नाम से ही समझ में आ रहा है. एंड दिस गैप, ये जो है ये आपके सेल्स को जोड़े नहीं रख सकता. नाउ वी नीड अ डेस्मोसोम्स, राइट? सो डेस्मोसोम्स इज नथिंग बट योर अधेरिंग सेल्स. सो डेस्मोसोम्स जब इस कनेक्टिन्स के साथ मिल जाएंगे, नाउ वी हैव अ डिफरेंट नेम. इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. दीज आर योर इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक? So this is an important concept, right? Intercalactic disc is nothing but the combination of your connecting gap junctions and your desmosomes, right? So यहाँ तक तो हमारी बात हो गई.
अब हमने ये देखा था कि यहाँ पे कैल्शियम आयंस जो थे वो काफी सारे बढ़ गए थे। यहाँ पर जो था +40 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पहुंच गया था। अब ये जो पोटेंशियल है ये यहाँ पे फ्लो हुआ, और यहाँ पर जो है कैल्शियम आयंस आने लगे, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस आने लगे। राइट। नाउ व्हाट विल हैपन कि जैसे ही ये पॉजिटिव आयंस आए, इन्होंने क्या करा, देखो यहाँ पे आरएमपी हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नोडल सेल का, ये नोडल सेल है, और इस नोडल सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, दिस वाज अबाउट -60 मिलीवोल्ट्स। और यहाँ के अगर हम आरएमपी की बात करें तो दिस इज अबाउट -85 मिलीवोल्ट्स। राइट, ये -85 के समथिंग होता है। पर जैसे ही ये कैल्शियम आयंस आते हैं, जैसे ये कैटायंस आते हैं, नाउ this will convert into a little bit positive -70। ये -85 या -90 से -70 तक पहुंचेगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे अभी पॉजिटिव आयंस आना शुरू हो गए। नाउ दिस पॉजिटिव आयंस विल ट्रिगर नाउ दिस पॉजिटिव आयंस विल ट्रिगर योर सोडियम चैनल्स। ये अगेन यहाँ पे सोडियम चैनल्स है, और ये बहुत सारा सोडियम अंदर लेने लगे एकदम से, बहुत सारा सोडियम का इनटेक होगा। नाउ शूट अगेन शूट, और ये जो शूट है ये -70 से लेके अगेन यहाँ +10 तक पहुंच जाएगा, +10 मिलीवोल्ट तक। राइट, सो -70 से ये +10 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। राइट, उसके बाद जैसे ही ये -70 से +10 तक पहुंचा, एक और चैनल खुल गया यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दीज आर योर पोटेशियम चैनल। राइट, पोटेशियम इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट यहाँ पर पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आने लगी है। तो जैसे ही क्या हुआ यहाँ पर, ये जैसे ही +10 तक पहुंचा, सोडियम चैनल तो बंद हो गए, सोडियम चैनल तो बंद हो गए, पर पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। सोडियम बंद, पोटेशियम चैनल ओपन। नाउ जो पॉजिटिविटी है वो तो बढ़ना बंद हो गई, उल्टा कम होना शुरू हो गई। सो यहाँ पर एक छोटा सा डिक्लिनेशन, एक एक डिक्लाइन आपको मिलेगा कि कैसे जो है एक फेज आपको कि पॉजिटिविटी कम हो रही है। राइट, सो +10 से लेट से ये आ गया है 0 मिलीवोल्ट तक, यहाँ पर पोटेंशियल 0 मिलीवोल्ट तक आ गया है। राइट, पर ये इसके नीचे भी चला जाता, ये इसके नीचे भी चला जाता, पर नहीं गया। क्यों? ये इसके नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर इसने इन सोडियम चैनल्स ने किसे ट्रिगर किया, एक और कैल्शियम चैनल्स को। राइट, और कैल्शियम चैनल्स को स्टिमुलेट करा, ट्रिगर करा कि ये कैल्शियम का इनटेक करे। राइट, इन्होंने कैल्शियम का इंटेक शुरू कर दिया यहाँ पे। सो जैसे ही कैल्शियम का इंटेक यहाँ पे शुरू हुआ, एक यहाँ पर व्हाट इज दिस, दिस इज योर प्लेटो फेज, है ना। तो ये जो फेज है प्लेटो फेज है, ये प्लेटो फेज क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे, ज्यादा ज्यादा नहीं पर बहुत धीमे धीमे कैल्शियम आयंस अंदर भी आ रहे हैं, और पोटेशियम आयंस बाहर भी जा रहे हैं। तो एक बैलेंस स्टेट है कि ना तो ये 0 से कम जा रहा है, ना 0 से ज्यादा जा रहा है। तो ये एक सैचुरेशन लेवल टाइप का कुछ बन गया है यहाँ पर। राइट, नाउ नाउ सी हियर, जब ये कैल्शियम आयंस यहाँ अंदर आ ही गए हैं, जब यहाँ पर कैल्शियम आयंस अंदर आ ही गए, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि यहाँ पर आपको ये इन्वेजिनेशन दिख रहा है, ये इन्वेजिनेशन, इसे हम कहते हैं टी टिब्यूल। इस टी टिब्यूल में यहाँ पे ये देखो, ये पॉजिटिव जो आयंस है ये जमा होना शुरू हो जाएंगे। नाउ इन पॉजिटिव आयंस में अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव आयंस इन्वेजिनेशन के थ्रू किससे जुड़े, अ वेरी वेरी सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है, सार्कोप्लाज्मिक। नाउ हु इज दिस, मैंने इसे मेंशन नहीं किया, मुझे मेंशन करना चाहिए, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसने अपने अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयंस को, बहुत सारे कैल्शियम पॉजिटिव आयंस को भर रखा है, भर भर के। अंदर कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर बहुत कम है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये चैनल्स ओपन होंगे, वो भी ओपन कब होंगे, जब ये इन्वेजिनेशन के थ्रू ये पॉजिटिव कैल्शियम आयंस जाके इससे जुड़ेंगे।
कैल्शियम इंड्यूसेस कैल्शियम, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर जैसे ही ये जाके जुड़ेगा, ये ओपन हो जाएंगे और यहाँ से भर भर के कैल्शियम बाहर आने लगेगा, राइट। जैसे ही भर भर के कैल्शियम बाहर आएगा, वो ट्रोपोनिन से जुड़ेगा। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, अनमार्क्सिंग और शॉर्टनिंग ऑफ बैंड्स, राइट, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ये सब तो हम मसल कॉन्ट्रेक्शन में अलग से डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर जैसी कैल्शियम आके जुड़ा, यहाँ पर हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। जो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल के कंपोनेंट्स थे वो अपन ने क्या क्या पढ़े थे। एक्टिन भी काम करेगा, मायोसिन भी काम करेगा, दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज बनेगा। उसके बाद हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कंपोनेंट था, उसने अपना काम कर ही दिया कैल्शियम आयंस को छोड़ के बाहर। और इसके अलावा अपना पास एक और कौन सा कंपोनेंट था, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये प्रोटीन्स है। ट्रोपोनिन के भी टाइप होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, राइट। तो ट्रोपोमाइसिन जो कि पूरी लेंथ में रन करता है फिलामेंट की, और मार्क्सिंग अनमार्क्सिंग का काम करता है एक्टिन के बैंड को, राइट। तो ये सारी बातें हम मसल कॉन्ट्रेक्शन में एक बार फिर मसल कॉन्ट्रेक्शन के वीडियो में जब अपन बनाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, राइट। बट हेयर यहाँ मान लो कि हाँ भैया मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया है। सो एक बार अगर मैं फिर से पूरी कहानी को एक बार कंक्लूड करूं, यहाँ पे सोडियम चैनल्स, फनी सोडियम चैनल्स, हाँ इन्हें फनी सोडियम चैनल्स भी कहते हैं। तो ये जो सोडियम चैनल्स हैं वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे यहाँ पे सोडियम आयंस को अंदर भेजते हैं। एक थोड़ा सा आपको एलिवेशन यहाँ पे दिखा, -60 से -55 मिलीवोल्ट तक का। फिर उसके बाद ये कैल्शियम चैनल्स, कौन से कैल्शियम चैनल्स, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ट्रिगर हुए, उन्होंने -55 से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और -40 मिलीवोल्ट तक उठाया। और फिर उसके बाद सडन इनटेक हुआ पॉजिटिव आयंस का, कैल्शियम आयंस का, और ये पहुंच गया हमारा कहाँ तक, +40 मिलीवोल्ट तक, राइट। ये जो पॉजिटिविटी है ये लोड कर दी गई कॉन्ट्रेक्टाइल सेल में। उसके बाद ट्रिगर यहाँ पे जो जैसे ही पॉजिटिव आयंस अंदर आए, -85 से -70 मिलीवोल्ट तक का जो है हमारा एक चढ़ाव देखने को मिला ग्राफ में। उसके बाद हमारे सोडियम आयंस अंदर आए बहुत तेजी से, +10 मिलीवोल्ट तक लेके गए पोटेंशियल को। फिर यहाँ पर सोडियम आयन जैसे ही बंद हुए अंदर आना और पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू हुए, हमें एक डिक्लाइन फेज दिखा जो कि 0 मिलीवोल्ट पे आकर रुक गया। उसके बाद सेचुरेशन लेवल प्लाटू फेज आया, किसके कारण, कैल्शियम आयंस अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे, पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, तो एक सेचुरेशन लेवल आ गया। इसके बाद की कहानी अब हम डिस्कस करते हैं। चलो पहले इसके बाद का फेज को नाम दे दे कि किस फेज का क्या नाम है। तो मैं जरा एक बात बताऊं कि ये जो फेज है इसे हम कहेंगे जीरो फेज, इस डिक्लाइन फेज को हम कहेंगे 1, एंड दिस फेज विल बी कॉल्ड एज फेज नंबर 2, राइट। नाउ, अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब हमें क्रॉस ब्रिज तोड़ना भी, क्योंकि देखो हम पूरे टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रह नहीं सकते, हमें रिलैक्स भी करना है, डायस्टॉल भी करना है, पूरे टाइम से स्टॉल तो हो नहीं सकता। हार्ट को रिलैक्स भी करना है, मसल्स को रिलैक्स भी करना है। नाउ वी नीड अ रीपोलराइजेशन, तो हमें अब रीपोलराइजेशन की जरूरत है। तो रीपोलराइजेशन कैसे होगा यार, जरा उसके बारे में सोचो। रीपोलराइजेशन ऐसे होगा कि यहाँ पर पोटेशियम जो है, पोटेशियम यहाँ पर पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, पोटेशियम चैनल खुले हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले, हमें पहले इसको नोडल सेल की बात करते हैं, सबसे पहले नोडल सेल की बात करते हैं। नोडल सेल में यहाँ से पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए, पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो अब क्या होगा, पॉजिटिविटी कम होगी, नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, राइट। तो यहाँ पर आपको ये वापस नीचे जाएगा और पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जाएगा। कैल्शियम चैनल्स वो क्लोज्ड है, कैल्शियम चैनल क्लोज्ड है, और अब नए कैल्शियम आयंस नहीं आ रहे हैं, पोटेशियम आयंस कंटिन्यूअसली बाहर जा रहे हैं। तो अब ये इतना नेगेटिव वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, फिर से जैसे ही ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचेगा, फिर ये ट्रिगर हो जाएंगे चैनल्स, और फिर से सोडियम अंदर आने लगेगा। फिर ये एक, तो ये साइकिल समझ पा रहे हो कि ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी। अब कॉन्ट्रेक्टाइल सेल की अगर बात करें, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल की बात करें तो यहाँ पे बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो यहाँ पर एक चैनल ये ओपन हो गए, एक चैनल अंदर कैसे हो गए कि भैया कैल्शियम आयन ही तो वो थे, कैल्शियम आयन ही तो वो थे कि जो
अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे थे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब ये कैल्शियम आयंस यहाँ से बाहर जाने लगेंगे ईसीएफ में, दिस इज योर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये वापस जाने लगेंगे, क्यों? अरे भैया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को भी तो रिचार्ज करना है कैल्शियम आयन से, हमें फिर कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से आएंगे? यही चैनल से तो अंदर अंदर आ रहे थे, और कहाँ से आ रहे थे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। तो ये वापस बाहर जाने लगेंगे। लेकिन हर चीज ऐसे फ्री में नहीं होती, अगर आपने कुछ दिया है तो कुछ लेना पड़ेगा, राइट? हम कुछ अगर परचेस करते हैं तो उसके लिए देना भी पड़ता है। तो यहाँ पर हम कैल्शियम देंगे और हमें मिलेगा प्रोटॉन H+, राइट? इसी तरीके से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी रिचार्ज करना है, तो क्या होगा? कैल्शियम आयन यहाँ से भी अंदर जाएंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा H+, प्रोटॉन बाहर आएगा। यहाँ पर एक एक डिफरेंट तरीका और है। यहाँ पे डिफरेंट तरीका ये है कि ये जो कैल्शियम आयंस है, ये ये भी अंदर आएंगे और बदले में हमें मिलेगा Na, हमें मिलेगा सोडियम। देखो Na इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जितना कैल्शियम, कैल्शियम प्लस प्लस है और Na+1। तो इवेंचुअली हर तरीके से बाय द ऑल मींस हो क्या रहा है? पॉजिटिविटी कम ही हो रही है। चाहे यहां से कैल्शियम बाहर जा रहा है और प्रोटॉन अंदर आ रहा है, चाहे यहां से कैल्शियम अंदर जा रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और यहां से प्रोटॉन बाहर आ रहा है, चाहे यहां से कैल्शियम अंदर जा रहा है और सोडियम जो है वो बाहर आ रहा है, किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ पर पोटेशियम आयंस खुले ही हुए, पोटेशियम चैनल्स खुले ही हुए, और यहाँ से अब और ज्यादा पोटेशियम बाहर जाने लगा है। तो इवेंचुअली देखो यहाँ पे प्लेटो फेज के बाद ये फिर से अगेन दिस इज गोइंग टू टच द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज -85 मिली वोल्ट्स इन योर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स। और जैसे ये -85 मिलीवोल्ट्स में जाके टच करेगा, -85 मिलीवोल्ट्स को जैसे ही टच करेगा उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो ये नीचे रहेगा, और फिर जब तक यहाँ नोडल सेल से फिर लोडिंग शुरू हो जाएगी योर कैल्शियम पॉजिटिव आयंस की, और फिर से एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा, राइट? सो अगर मैं इसे समराइज करूँ तो यही हुआ कि सबसे पहले नोडल सेल में सोडियम आयंस आए, फिर एक एक करके एल टाइप और टी टाइप कैल्शियम जो चैनल से वो एक्टिवेट हुए। जब कैल्शियम चैनल्स यहाँ कैल्शियम आयंस यहाँ पे बहुत ज्यादा भर गए, तो अब ये लोड कर दिए गए कनेक्टिंग्स के थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू आपके कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स में, और उसके बाद सोडियम आयन चैनल्स एक्टिवेट हुए, फिर कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हुए, इन्वेजिनेशन टी ट्यूब्यूल के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गए, और फिर वहां से कैल्शियम ने और ज्यादा कैल्शियम को इंड्यूस करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकाले। जब कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा हो गए तो क्रॉस ब्रिजेस बने और मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई। उसके बाद हमें मसल को रिलैक्स भी करना है, तो क्या हुआ? धीरे धीरे करके कैल्शियम या तो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाने लगे या फिर ईसीएफ में जाने लगे, साथ ही साथ पोटेशियम भी बाहर जाने लगा। नोडल सेल में अगर बात करें तो पोटेशियम बाहर जाने लगा और नए कैल्शियम आना बंद हो गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी कम होते हुए वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को छू गई, जहां से एक नई साइकिल दोबारा इनिशिएट हो सकती है। So this is all about your intrinsic conduction in heart, right? इन दिस वीडियो इतना ही, इंट्रिंसिक कंडक्शन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंसिव कंडक्शन ऑफ हार्ट, राइट? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चैनल को यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगी मुझे और काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। सो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।